ہر جمعرات کو ہم 6 دوست شعیبہ کے سمندر کو جایا کرتے تھے۔ یہ جگہ مکہ کی بالکل قریب ہے اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ عجیب و غریب کہانیوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جن کا بسیرا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس سمندر کو بحر جن بھی کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان باتوں کو افواہ سمجھتے تھے جب تک ہمارے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہوا جسے ہم آج تک نہیں بھول سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے اسنیک، کافی، جو کچھ بھی آپ نے لینا ہے لے کر آ جائیں، کیونکہ بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی بلال نام کے ایک شخص کی ہے۔ وہ بتاتا ہے، میں اور میرے 5 دوست ہر جمعرات شعیبہ کے سمندر کے پاس اپنا ویکینڈ منانے جاتے تھے۔ کھانا پینا، انجوائمنٹ۔ ہم سب کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی شادی شدہ بھی نہیں تھا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک جمعرات ہم لوگ شام ڈھلنے سے پہلے وہاں پہنچے۔ ہم لوگ جان بوجھ کر ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں ہمارے ارد گرد کوئی بھی نہ ہو۔ ہمیں ایسی جگہ مل گئی جو سمندر کے بالکل قریب تھی اور لوگوں سے بالکل دور، لیکن باقی علاقے کی نسبت کافی سنسان اور اندھیری تھی۔ ہم نے سوچا کہ کیمپنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے ٹینٹ لگایا، لکڑیاں جمع کی، کھانا پکایا اور شام تک سارا بندوبست کر لیا۔ سورج ڈوبا تو سمندر کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ مغرب کی نماز پڑھی، اپنی لکڑیاں جلائی اور کھانا پکانا شروع کر دیا۔ مٹن وغیرہ، مندی، گوشت کی بات ہے تو اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 11 بج گئے اور اصل محفل اب شروع ہونی تھی۔ قہوہ بنا اور سارے آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے ایک ہارر سٹوری سنانے لگا۔ مجھے باقی کہانیاں تو یاد نہیں، لیکن احمد کی سنائی ایک کہانی مجھے آج بھی یاد ہے۔ احمد کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی 8 سال کی اپنے گھر میں اکیلی تھی اور اس کے والدین کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ لڑکی بالکل گھر میں اکیلی تھی۔ لڑکی کے ساتھ صرف ایک کتا تھا جو اس کی حفاظت کے لیے اس کے والدین نے رکھا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ رات ہوئی تو لڑکی ڈرنے لگی۔ ظاہری بات ہے، 8 سال کی بچی ڈرنا تو بنتا ہے، اور اسے اچانک سے باتھ روم میں آواز آئی کہ کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر نل بند کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کمرے کے دروازے کے قریب کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کا کتا اس کا ہاتھ چھو لے تو اسے تھوڑی تسلی ہو جائے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ بیڈ کے نیچے کیا تو کسی چیز نے اس کا ہاتھ چاٹا۔ اسے لگا اس کا کتا ہوگا اور وہ مطمئن ہو کر سو گئی، اور صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا اس کے گھر کا کتا ایک خوفناک طریقے سے مرا ہوا تھا اور زمین پر اس کے خون سے لکھا ہوا تھا، ہر چیز جو تمہارا ہاتھ چاٹے ضروری نہیں کہ وہ کتا ہو۔ ہم نے احمد کی کہانی سن کر اس کا مذاق اڑایا اور کہا، یہ تو بالکل ڈراؤنی نہیں تھی، یا کیا فضول باتیں کر رہے ہو۔ لیکن ہمارے ساتھ ہمارا ایک کزن تھا جس کا نام تھا راکان۔ وہ یہ کہانی سن کر بہت ڈر گیا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ اس کو تسلی دینے لگے اور ماحول ہلکا کرنے کے لیے ہم نے سوچا چلو یار، جو ہم اپنے انجوائمنٹ کے لیے جو دف وغیرہ لے کے آئے تھے وہ بجاتے ہیں، تھوڑا انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے 2 دوست عبداللہ اور یزید دف بجانے میں کافی ماہر تھے۔ انہوں نے اپنا سامان نکالا اور ہم لوگ گانا گانے لگے اور دف بجانے لگے۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک ہمیں کہیں دور سے ہنسنے اور تالی بجانے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے فوراً بجانا بند کر دیا اور رک گئے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بھی آواز آنا بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دوبارہ شروع کیا تو وہی آواز دوبارہ آنے لگی۔ اس بار ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ لگا کہ شاید ہمارے ساتھ ہمارے قریب کوئی اور کیمپ لگا کر بیٹھا ہے، شاید وہیں سے آواز آ رہی ہوگی۔ تو ہم نے سوچا یار ہم 2 حصوں میں بٹ کر، مطلب 3 حصوں میں 6 دوست سے 2 بٹ کر جا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ سب سے قریب کیمپ تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا، مطلب اس کی آواز یہاں تک آنا امپاسبل۔ اب ہم نے سوچا یار بجائے اس کے کہ ہم گانا گائیں، ہم لوگ ریڈیو یا ان کی جو گاڑی تھی اس پہ گانا چلا کر تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، اور انہوں نے گانا چلا دیا۔ انہوں نے ایک ایسا گانا چلایا جو جن کا نام بھی جن سے ہوتا ہے، تو میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لوگ شاید جا کر سرچ کریں گے اور سنیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے گناہ نہ ملے، میں ایسے گانے کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سننے کے بعد کافی ریلیکس ہو گئے، انجوائے کر رہے تھے وہ گانا سننے کے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ہم سب عجیب طریقے سے ڈانس کرنے لگے، بالکل جیسے
पागलों की तरह और नॉन स्टॉप, कोई हमें रोकने वाला नहीं था। और शुरू में हम लोग हंस रहे थे और एक दूसरे का देखकर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन अजीब सी होने लगी। हम एक ही गाना बार बार रिपीट कर रहे थे और हम सब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। और अजीब सी बात यह है कि किसी को थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। हम आग के गिर्द घूम रहे थे, नऊजुबिल्लाह, जैसे कि पूजा वगैरह लोग करते हैं, और एक दूसरे को भी अजीब डांस करने के लिए उकसा रहे थे। बाद में हमें पता चला कि रात के 2:30 बज चुके हैं, यानी लगभग हम लोग 2 घंटे एक ही गाने पर डांस कर रहे थे। आखिर हम सब एक ही वक्त पर टेंट के अंदर गए और सो गए। बिलाल यहाँ कहता है कि फजर के टाइम मेरे मोबाइल में अलार्म बजा, मुझे यहाँ पता चला कि फजर का टाइम हुआ है और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरे सारे दोस्त गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जाग रहा था, गहरी नींद में थे। अब्दुल्ला जो आम तौर पर सबसे पहले उठता था, वो भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। मैं वजू करने के लिए टेंट से थोड़ा दूर गया और अचानक से मुझे एक इंसान नजर आया। वो हमारे कैंप के करीब खड़ा था और मेरे दोस्तों को देख रहा था। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, भाई तुम कौन हो? लेकिन वो चुप रहा। वो कभी आग को देखता और कभी हमारे कैंप को। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा, भाई तुम कौन हो? मुझे डर लगा, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लिया और उसके पास चला गया। जब मैं उसके बिल्कुल सामने पहुंचा तो उसने कहा, सच कहूं तो मुझे तुम लोगों का दफ बजाना और रात का गाना बहुत पसंद आया, तुम लोगों ने क्यों बंद कर दिया? मैं भी तुम लोगों के साथ डांस करना चाहता था। मुझे उसकी बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान लग रहा था। वो तकरीबन 25 साल का लग रहा था। उसकी हाइट भी काफ़ी लंबी थी और उसका कलर जो था वो थोड़ा सांवला था और हल्की फुल्की उसकी दाढ़ी थी। मुझे लगा शायद ये कहीं आसपास रहता है या हमारी तरह ये भी कैंपिंग करने आया है। मैंने उसे कहा, आप आज रात आ जाना और हम लोग साथ बैठेंगे। उसने जवाब दिया, ओके ठीक है। मैंने उसे कहा कि मेरे दोस्त सो रहे हैं तो हम लोग फजर की नमाज साथ में पढ़ते हैं, चलो जमात हो जाएगी। उसने हाँ कर दी। बस मैंने कहा, चलो मैं वजू करके अभी आता हूँ। मैं पानी लेने गया और 1 मिनट से भी कम वक्त में वापस आ गया, लेकिन वो आदमी बिल्कुल गायब था। मैंने हर तरफ देखा, वो गायब, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और फिर दोबारा जब मैंने अपने कैंप की तरफ देखा, जो मंजर सामने आया, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे 5 दोस्त अब भी सो रहे थे, लेकिन इस बार वो लेटे हुए नहीं थे बल्कि बैठे हुए थे। मैं कुछ समझ नहीं सका और मैं अपने टेंट के अंदर चला गया। उन्हें चिल्लाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ही नहीं है। मैंने एक एक करके सबको सीधा लिटाया और उनकी आंखें बंद की। फिर वुजू किया, नमाज पढ़ी और टेंट के बाहर जाकर कहवा बनाया और कहवा पिया। सुबह के 10 बज गए, लेकिन मेरे दोस्तों में से कोई नहीं उठा। तकरीबन 11 बजे धूप सीधी उनके चेहरों पर पड़ने लगी। मैंने पानी लिया और उनके चेहरों पर डाला ताकि उनकी आंख खुल जाए। कुछ देर बाद सब उठ गए। मैंने मजाक में उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने पूरी रात अहले कहफ वाली नींद सोई है? फजर भी छूट गई तुम लोगों से। खैर, उसके बाद हम लोगों ने कहवा पिया जो हम लोगों ने बनाया था, नाश्ता किया और बातें करने लगे। मैं इतना थका हुआ था कि मैंने दिन का काफी हिस्सा सोकर गुजारा। मगरिब से पहले मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे दोस्त आग के पास बैठकर गाना सुन रहे थे और बिल्कुल नॉर्मल थे, और मगरिब की नमाज भी पढ़ी और खाना खाया और रात की महफिल दोबारा शुरू हो गई। लेकिन मेरे जहन में अभी भी वो आदमी था जिसने कहा था आज रात वो हमारे साथ बैठेगा। 10 बज गए, वो आदमी नहीं आया। 11 बज गए, तब भी वो आदमी नहीं आया। मैंने दोस्तों से कहा शायद अब आ जाए। उन्होंने कहा शायद वो कोई रैंडम आदमी होगा, उसका इंतजार मत करो यार, अपनी महफिल शुरू करते हैं, छोड़ो। फिर उन्होंने दोबारा से दफ बजाने शुरू कर दिए, वही गाना बजाना, और सेम जो पिछली रात हुआ था वही उनको दोबारा से आवाज रिपीट होने लगी, वही हंसना और तालियां बजाना। लेकिन दोस्तों, वो कहता है कि इस बार हमने जो दफ बजाना शुरू किया और हम रुकना चाहते थे तो हमारे हाथ ही नहीं रुक रहे थे, हम बजाए जा रहे थे, बजाए ही जा रहे थे। वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे जिस्म को कंट्रोल ही कर रहा हो। हम लोग एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, लेकिन अंदर से हम लोग बुरी तरह डरे हुए थे। यजीद अजीब सी हरकतें करने लगा और हम उस पर हंसने लगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राकान अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। अचानक वो रोने लगा और चिल्लाने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? फिर मैंने देखा वही आदमी राकान के पीछे खड़ा था। वो राकान से कह रहा था कि तुम बजाओगे
तुम जरूर बजाओगे। मैंने उससे पूछा भाई तुम राकान से क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये भी तुम लोगों के साथ बजाए। अचानक राकान भागकर आग की तरफ गया और अपना हाथ कोयले के ऊपर रख दिया। वो दर्द से चीखने लगा और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ दफ नहीं बजाना चाहता। लेकिन वो आदमी कह रहा था अब तुम हमारे साथ दफ बजाओगे। आखिर राकान ने दफ उठाया और बजाना शुरू कर दिया। हम सब के हाथ जख्मी होने लगे थे दफ बजा बजा के, लेकिन कोई नहीं रोक पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक राकान गिरकर बेहोश हो गया। उस वक्त जैसे मेरा कंट्रोल वापस आ गया हो और मैं भागकर राकान की तरफ गया और उसके चेहरे पर पानी डाला और वो होश में आ गया। उसी वक्त समंदर से एक बहुत तेज लहर आई। हमने बीच की तरफ देखा तो एक शख्स खड़ा था। वो राकान को देखकर मुस्कुरा रहा था। राकान ने उसकी तरफ देखा और अचानक से बिजली की रफ्तार में उसकी तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे भागने लगा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा बिलाल अगर तुम राकान के पीछे गए तो तुम शायद वापस न आ सको। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों समंदर के किनारे पहुंचे तो देखा वहाँ राकान बैठा हुआ था। वो झुककर बैठा था और अपने हाथ अपने पैरों के पास रखे थे। मैंने कहा राकान चलो वापस चलते हैं, लेकिन उसने कहा बिलाल मेरे करीब मत आना। हमने उसे जबरदस्ती पकड़ा और गाड़ी तक ले आए। गाड़ी में हमने राकान को बीच में बिठाया और शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर वो खुद को गाड़ी से बाहर फेंकने की कोशिश करता रहा और बार बार कह रहा था मुझे वापस ले जाओ, मेरे घर वाले वहाँ हैं। हमने गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद कर दी और कुरान चला दिया। हम शहर पहुंच गए और करीबी हॉस्पिटल उसे ले गए। डॉक्टर्स ने राकान को चेक किया और कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसके हाथों पर कुछ चलने के निशान थे। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बुरी हालत के बाद वो बिल्कुल ठीक कैसे हो गया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मामला इतना ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस दिन के बाद राकान बिल्कुल बदल गया। वो लोगों से मिलता जुलता नहीं था और बिल्कुल खामोश ही रहता था। लेकिन जब हमने कुछ शेखों को उस पे कुरान पढ़ने के लिए बुलाया, तकरीबन 2 साल बाद एक दिन राकान अचानक से घर से गायब हो गया। उसके वालिद को उसके कमरे में एक अजीब सी तहरीर मिली। उसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मेरे घर वाले शुएबा के समंदर में हैं। बिलाल यहाँ कहता है कि मुझे फौरन समझ आ गया कि राकान किस जगह की बात कर रहा है। मैं अपने वालिद और राकान के वालिद और कुछ रिश्तेदारों को लेकर उसी जगह पर चले गए जहां हम 2 साल पहले कैंपिंग करने आए थे। लेकिन जो मंजर हमने वहां देखा वो हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। बीच पर राकान की लाश पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह से झाग निकल रही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी मौत को सिर्फ कुछ घंटे हुए थे। राकान के वालिद ये मंजर देखकर टूट गए और रोने लगे और मैं अंदर से बिल्कुल पछतावे में था कि मुझे लग रहा था इस चीज के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम ही उसे वहां लेकर गए थे। लेकिन उस दिन के बाद हम में से किसी ने शुएबा के समंदर का दोबारा रुख बिल्कुल नहीं किया। पहले हम लोग समझते थे कि इस जगह के बारे में जो बातें निकलती हैं वो सारी अफवाहें हैं, लेकिन उस दिन के बाद हमें समझ आ गई कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद मेरे लिए उन कहानियों को सिर्फ अफवाह कहना मुमकिन नहीं था। लेकिन इस कहानी का असल सबक ये है कि हर अजीब वाकया को फौरन किसी एक वजह से जोड़ना भी ठीक नहीं है। जो कुछ राकान और उसके दोस्तों के साथ हुआ उसकी हकीकत क्या थी ये यकीन से कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि कुछ जगहों पर लापरवाही और अंधा मजाक इंसान को बहुत मुश्किल हालत में डाल सकता है। इसलिए अगर आप कहीं सुनसान जगह पर जाते हैं तो अपनी हिफाजत सबसे पहले रखें और हर अजीब चीजों को बिल्कुल सीरियस लें। दोस्तों यहाँ अगर शुएबा समंदर की बात करें तो ये हादसे वाकई हुए हैं और मेरे खुद के 2 से 3 दोस्त जो उस समंदर में डूब के मरे हैं और वो माशाल्लाह तो नहीं अब मर गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो अच्छे खासे स्विमर थे, अच्छी खासी स्विमिंग करते थे। कैसे फोत हुए उनको कोई पता नहीं चला। क्या वो मिले दोबारा? हाँ मिले थे, लेकिन मतलब स्विमिंग में बिल्कुल वो थे तो हाँ माहिर थे। तो इस समंदर के अंदर ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बस दोस्तों यही ख़त्म होती है आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर करें। मैं हूं अब्दुर्रहीम मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हैप्पी डे उस्ताद।
ویل ڈن. تھینک یو استاد, تھینک یو. دف بجانا آتا ہے بجانا. To obey you, that's right, and my aim is pleasing you. I love you are the only